Jai Hind. With immense pleasure and great honor, I, Dr. Nisha Rana, in charge IPSL, Swami Vivekananda Bharati University, and member AFTEF Society, warmly welcome all dignitaries, academicians, scientists, researchers, faculty members, students, industry experts, and participants from across the country to the day 15 of Kirti Manthan, the 21-day summer training program. The unique academic initiative is being jointly organized by Rani Lakshmibai Central Agriculture University, Jhansi, University of Agriculture Sciences, Raichur, Swami Vivekananda Subharati University, Meerut, GD Goenka University, Gurugram, Sant Grera Guru Vishwavidyalaya, AFTEFS Society, Vital Biotech Education Group, Kota. The program has been started from 1st June 2026 and will be continued to 21st June 2026, focusing on agriculture, horticulture, forestry, sustainability, entrepreneurship, modern technologies, and skill development. Now, moving forward for the technical session, it's my privilege to introduce our speaker, Dr. Swati Sharma, Professor of Agribusiness Management at ASP Agribusiness Management Institute, Navsari Agriculture University, Gujarat. Dr. Sharma is an accomplished academician, researcher, trainer, and agribusiness management professional, over 16 years of diverse experience spanning higher education, research, entrepreneurship development, agribusiness training, and industry engagement. She holds a PhD degree in management, an MBA in agribusiness management, and BSc honors in agriculture, and a postgraduate diploma in agri warehousing management and distribution. Throughout her distinguished career, she also served as various academic and industry positions, including professor, associate professor, assistant professor, program coordinator, and warehouse manager. At Navsari Agriculture University, she has played a pivotal role in the strengthening of innovation and entrepreneurship ecosystem throughout initiatives such as Student Startup and Innovation Policy 2.0 and AC and ABC scheme and University Startup Cell, including the Farmer Producer Organization Cell. Dr. Swati Sharma was instrumental in establishing the Center for Innovation in Agri Entrepreneurship at NAU and designing the postgraduate certification course in Farmer Producer Organization. Throughout her leadership and mentorship, numerous agribusiness and agri-entrepreneurship have successfully established enterprises, while students and professionals have benefited from specialized training and capacity building programs. An active researcher and prolific author, Dr. Sharma has made significant contribution to the field of agribusiness management. Her academic achievements include more than 88 research papers, 83 book chapters, 10 authored books, and 4 edited books, and numerous popular art and manual booklets and educational research. She has successfully undertaken several research projects as PI and co-PI. Now, I would like to deliver, I like to request to ma'am to kindly deliver her lecture. As per the request of students, we have already organized the second time. So, ma'am, kindly deliver your lecture because it was the demand of the students. Okay, thank you very much. Thank you, ma'am, and thank you, sir, for inviting me again and giving me the responsibility that I should share something else from the agribusiness domain. So it is my privilege to be here and sharing something which is again be knowledgeable for the participants so that they can carry forward these aspects in their startups, in their entrepreneurship journey, or even in their master or PhD level research. So I think my presentation is already being shared and it's visible. I'll make it full screen. Ma'am, it's okay? Yes, ma'am, it's visible. Okay. Good evening, everyone. So, today we would be talking about a very important aspect, which is not only pertaining the sector of Indian agriculture, but also at global level, which is value chain management. So, we would be understanding that what is value chain management, what are the things we can proceed in the implementation of value chain system in Indian agriculture sector. So I would be talking about value chain development and strengthening in the Indian agriculture sector.
So, in my last presentation, I also told you that this is what is happening today. When you talk about the current agriculture system, then you will find that various mediators are there in the chain. Between the farmer and the consumer, there are various number of people as stakeholders being taken the margin from the farmer and the consumer. We have a term in economics called price spread, farmer share in consumer rupee. For example, I am as a consumer buying tomatoes for 80 rupees kilo. Then from 80 rupees I paid, how much amount is received by the farmer is very, very important. For example, at how much price the farmer has sold his tomatoes, it would be merely 3 to 5 or 7 rupees or 10 rupees maximum. He would have sold his tomato for 10 rupees kg to these stakeholders. Now, मुझे कितने में मिल रहा है एज अ कंज्यूमर? I am paying 80 rupees. So farmer share in my rupees is very, very less. And this is what we are focusing today. That is, we have to have farmer success in agriculture. We have a model in agriculture called Amul, cooperative model. जब मैं अमूल कोऑपरेटिव मॉडल की बात करती हूँ और जब मैं यही टर्म Sorry to मिल्क के लिए interrupt, यूज ma'am. करती हूँ वो Ma'am, sorry to interrupt. yes, The yes. ma'am kindly use bilingual mode as few students from Hindi. Yeah. So Yeah. the from English Yes, background, sir. those people to understand. हाँ, they Those will not Hindi be able to background, understand. it will be easy. Yes. हाँ, तो जब अगर मैं यही एग्जांपल मिल्क के लिए लेती हूँ कि कंज्यूमर के पेमेंट से फार्मर को कितना मिल रहा है, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जहां टोमेटो में मेरे 80 रुपी पेमेंट से फार्मर को सिर्फ 10 रुपीज केजी मिल रहा है, वहीं पे मिल्क के अंदर अगर हम मिल्क का पेमेंट करते हैं तो 85% मेरे रुपए का मिल्क प्रोड्यूसर को जाएगा, बिकॉज वहां पे कोऑपरेटिव मॉडल है, वहां पे सारे मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनाइटेड हैं और इसे हम बोलते हैं वैल्यू चेन सिस्टम, बिकॉज फार्मर इज गेटिंग मैक्सिमम. इफ आई एम पेइंग 1 rupees फॉर मिल्क, देन 85 पैसा किसको मिल रहा है? मिल्क प्रोड्यूसर को. बट इन अदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज वी डू नॉट हैव दिस सिस्टम जहां पे फार्मर को मैक्सिमम रिटर्न मिले. तो अभी हम क्या डील कर रहे हैं? हंगर वेरी हाई, वी आर वेरी, इंडिया इज वेरी हाई इन हंगर इंडेक्स. हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस 13 बिलियन यूएस डॉलर होता है हर साल. फूड वेस्टेज हमारा परसेंटेज बहुत हाई है और फार्मर को उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है. एंड दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग कि व्हाट स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए जिससे फार्मर को बेनिफिट हो एंड ही इंक्लूड दैट स्ट्रैटेजी अपने एग्रीकल्चर सिस्टम में. सो व्हाट वी नीड टू एड्रेस टुडे, हम ऐसा बार बार बोलते हैं कि इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नंबर 1 है क्योंकि हम बहुत सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में नंबर 1 है. बनाना ले लो, फ्रूट ले लो, वेजिटेबल ले लो, फूड ग्रेन्स ले लो, वी रैंक नंबर 1. मिल्क में हम नंबर 1 है. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मार्केटिंग. फार्मर्स आर नॉट गेटिंग प्रॉपर मार्केट प्लेस और दे डू नॉट नो मेरे कंज्यूमर कौन से हैं. तो प्रॉब्लम प्रोडक्शन नहीं है. इंडिया प्रोडक्शन में पहले से ही बहुत अच्छा कर रही है. हमारा प्रॉब्लम है प्रोडक्टिविटी. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी? पर यूनिट प्रोडक्शन. क्योंकि हमारे फार्मर के पास लैंड होल्डिंग साइज कम होता जा रहा है तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, विच इज द प्रॉब्लम. So production is not the problem. We are having good amount of production. We rank number 1 in production. Problem है productivity का और problem है marketing का. Reaching the product to the market problem है क्योंकि वहां पे हम post harvest losses कर रहे हैं after harvesting. तो what is the biggest problem? अभी हम बिगेस्ट प्रोड्यूसर के साथ साथ बिगेस्ट फूड वेस्टर भी बनते जा रहे हैं इन आवर कंट्री, विच इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज. तो हमने ये चैलेंजेस अपने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़े थे, जैसे फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है फार्मर के पास, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी, आईओटी, मशीन लर्निंग, प्रिसीजन फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक. फार्मर्स को नहीं पता है व्हाट इज गोइंग ऑन. सो टेक्नोलॉजिकली वी आर वेरी मच अवे
फ्रॉम द डेवलपमेंट, हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है, वो है क्लाइमेट चेंज या नेचुरल डिजास्टर, जहां पे क्रॉपिंग सिस्टम चेंज हो रहे हैं, रेन पैटर्न चेंज हो रहे हैं, सोइंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं, एंड इवन क्रॉप लॉसेस आर इंक्रीजिंग. सो ये एक ऐसा मेन पॉइंट है जहां पे हमें कोई टेक्नोलॉजी या फिर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी से पे काम करना पड़ेगा जिससे हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर पाए प्रॉब्लम को. मार्केट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन, हम हमेशा अनबैलेंस्ड रहते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग द प्राइस, क्योंकि हमारे पास मार्केट अनसर्टेनिटी है. फार्मर जब क्रॉप सो करता है उसको नहीं पता हु इज बायर ऑफ माय प्रोड्यूस. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. फार्मर को नहीं पता है हु विल बी बाइंग माय प्रोडक्ट इन फ्यूचर. अगर एक प्रोड्यूसर को अपने कंज्यूमर के बारे में नहीं पता है, वी कैन नॉट कॉल इट सप्लाई चेन, वी कैन नॉट कॉल इट वैल्यू चेन, और मैं तो इसको मार्केटिंग चैनल भी नहीं बोलूंगी. मार्केटिंग चैनल में भी आपको पता होना चाहिए हु इज योर बायर. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हम आगे पढ़ेंगे ये सब कैसे पॉइंट्स हैं जो हमको कंसिडर करने हैं. बार्गेनिंग पावर फार्मर के पास नहीं है, ही इज डूइंग डंपिंग that China do of plastic in India. Similarly, हम अपने एग्री प्रोड्यूस की डंपिंग कर रहे हैं in the market without knowing the losses which we are bearing. So in agriculture, we are dumping our commodity in the market because there is excess of production and there is no market for buying the product on time. What and how much India waste? The percentage varies according to the different research and different newspapers. But ultimately, हम 13 billion US dollar का wastage कर रहे हैं, which is not a small amount. वो बहुत बड़ा amount है जिसे हमें tackle करना है. India wasting 13 billion US dollar of food in the country is a huge amount. Again, अगर हम इंडिया की बात करें तो 196 मिलियन पीपल अफेक्टेड बाय हंगर. हमारी इंडिया की रैंक हंगर इंडेक्स वर्ल्ड के अंदर 107 है, जो बहुत अलार्मिंग है. दैट इज हम फूड सिक्योरिटी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं. व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? एवरी पर्सन इन द कंट्री शुड गेट इनफ फूड फॉर देयर सर्वाइवल. तो हम फूड सिक्योरिटी को भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं. सेफ्टी तो बहुत दूर की बात है. फूड सेफ्टी का मतलब है प्रोडक्ट अडल्ट्रेटेड नहीं हो, प्रोडक्ट कंटामिनेटेड नहीं हो, और प्रोडक्ट के अंदर हार्मफुल केमिकल नहीं हो. तो ना तो हम फूड सेफ्टी पे फोकस कर पा रहे हैं, ना फूड सिक्योरिटी पे फोकस कर पा रहे हैं. सो इंडियन एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है. यस, हमें बहुत अच्छे डाटा मिलते हैं. इस बार भी हमें अच्छे डाटा मिले कि वीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है, राइस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है, हम बहुत सारी कमोडिटीज में नंबर 1 है. बट जब तक हम सक्सेसफुल नहीं है, जब तक फार्मर्स आर गेटिंग पुअरर, हमारा 75% यूथ एग्रीकल्चर को नहीं लेना चाहता एज ऑक्यूपेशन, तो हम इस इंडस्ट्री को ग्रेसफुल नहीं मान सकते, हम इस इंडस्ट्री को अपॉर्चुनिटी नहीं मान सकते, बिकॉज द प्रोड्यूसर्स आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट. रीजन क्या है? मीडिएटर्स. मैं ये नहीं बोलूंगी कि मीडिएटर्स खराब होते हैं, मीडिएटर्स नहीं चाहिए. मैं आगे आपको बताऊंगी कि मीडिएटर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर उनको वो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए और उनको ये होना चाहिए कि मेरा इस चेन के अंदर क्या रोल है. सिर्फ मार्जिन ईट करने का या सिर्फ मार्जिन लेने का काम नहीं है मीडिएटर का. मीडिएटर के बहुत सारे रोल होते हैं जिसमें हम अपने एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. फार्मर को क्या हो रहा है? हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वाटर टेबल इज गेटिंग डाउन, वाटर शॉर्टेजेस हो रहे हैं, सॉइल फर्टिलिटी इज गेटिंग डाउन, बैरन लैंड परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, एंड वेदर daily it is fluctuating. So weather related to climate change is one of the very uncertain situation जो फार्मर को बियर करना है. So big profit कहां से आ रहे हैं? आफ्टर फार्म. फार्मर के एंड पे कोई प्रॉफिट नहीं है, बट आगे के सारे स्टेक होल्डर्स को प्रॉफिट हो रहा है. यानी प्रोड्यूसर को प्रॉफिट नहीं हो रहा, बाकी सबको प्रॉफिट हो रहा है. सो फार्मर के फील्ड पे लो इनकम है, एंड दैट इज व्हाट इज द अलार्मिंग सिचुएशन व्हाई वी आर टेकिंग दिस टॉपिक ऑफ वैल्यू चेन मैनेजमेंट.
हमें क्या करना है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हमें कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में सोचना है। हम अभी भी क्रोट्रिक हैं, हम एक ही बात के बारे में सोच रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन। नो, वी हैव टू टॉक अबाउट market. We have to talk about linking the produce to the market, that is known as commercialization of agriculture। और commercialization of agriculture का simple definition कहलाता है एग्री बिजनेस। एग्रीकल्चर से एग्री बिजनेस को फोकस करना है, फार्मर से फार्मर को एग्रीप्रेन्योर बनाना है। फार्मर इज अ प्रोड्यूसर, कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन। एग्रीप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो वो प्रोड्यूस करता है जो कंज्यूमर को चाहिए, जो मार्केट की डिमांड है, और उस तरीके से प्रोड्यूस करना और प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना किसका काम है? एग्रीप्रेन्योर का। फार्मर इज प्रोडक्शन सेंट्रिक। आप ये बात समझिए, फार्मर किसको फोकस करता है? खाली प्रोडक्शन को। एग्रीप्रेन्योर किसको फोकस करता है? मार्केट सेंट्रिक अप्रोच। मार्केट को क्या चाहिए, कंज्यूमर को क्या चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या ग्रो करना चाहिए, दैट इज एंटरप्रेन्योर। सो ये कुछ फोकस शिफ्ट्स हमको लाने पड़ेंगे इन आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। सो एग्रीकल्चर के सप्लाई चेन चैलेंजेस, सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूंगी व्हाट इज सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का एक सिंपल डेफिनेशन है, दैट इज मूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम फार्मर टू कंज्यूमर, जिसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे सब लोगों का। हम एक चेन बनाएंगे जिसमें हम एक चेन बनाकर नाम लिखेंगे कि मुझे मेरे टोमेटो प्रोडक्शन में क्या कौन कौन चाहिए। सबसे पहले इनपुट प्रोवाइडर चाहिए, जैसे कि सीड कंपनी चाहिए, या मुझे जो है फर्टिलाइजर कंपनी डिसाइड करनी है, या फिर मैं कहाँ से अपना केमिकल्स लूंगा, जो भी इनपुट्स चाहिए, मशीनरी, हम वो लेंगे। फार्मर आ जाएगा, फिर होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे, एक्सपोर्टर्स आ जाएंगे, और कंज्यूमर आ जाएंगे। तो हम एक सप्लाई चेन बनाएंगे, पेपर के ऊपर डिफाइन करेंगे कि हमारे कहां से कहां तक मूव होना है हमारे प्रोड्यूस को। पर अगर आप अभी देखेंगे इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, हमने सप्लाई चेन को 3 डिवीजन किए हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर आएगा प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं। हम अभी सिर्फ फोकस कर रहे हैं प्रोडक्शन पे। हम इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में प्री प्रोडक्शन को भी फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन है, प्रोडक्शन। इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया यू विल नेवर बी एबल टू अचीव सक्सेस जब तक आपका सिस्टम प्री प्रोडक्शन से स्टार्ट होकर डिस्ट्रीब्यूशन तक एंड नहीं होता। यानी जब आप प्लानिंग करोगे what to produce, how to produce, when to produce, for whom to produce, and for what scale I should produce, ये जब आप क्वेश्चन के आंसर लिखोगे ना, तो आपको ये चेन बनानी है। प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी, पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोसेसिंग एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी। हम अभी सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्शन। ना प्री प्रोडक्शन प्लान है, ना पोस्ट प्रोडक्शन प्लान है, और यही हमारा गैप है। तो हमें ये पता है कि हम क्या ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो हम ग्रो कर पा रहे हैं, पर हम किसके लिए ग्रो कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। हम कहाँ भेजेंगे हमें नहीं पता, हमारा कितना कैपेसिटी है ये सब हमें नहीं पता। प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या आता है? लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी इनपुट्स। हमारे हर बार इनपुट सप्लायर बदल जाते हैं, आज इस रिटेलर से ले लिया, उस डीलर से ले लिया, और हम उनकी बातों में आकर अपने इनपुट सप्लाई को फ्लक्चुएट करते हैं। पर अगर आप सप्लाई चेन बोलो कि आई एम अ फार्मर, आई हैव अ सप्लाई चेन, तो आपका जो इनपुट सप्लायर है वो 5 साल के लिए फिक्स होना चाहिए। 5 साल तक मैं इसी सप्लायर से इनपुट लूंगा, क्योंकि तब लॉयल्टी आती है, तब ट्रस्ट आता है, और तब सही डिसीजंस आपको लेने के लिए सप्लायर हेल्प करता है। तो सप्लाई चेन प्री प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर एक्सेस, अफोर्डेबल क्रेडिट, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एजेंसी है जो हमको टाइम पे हेल्प करेगी, कौन सा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है जो मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है जो मेरे को सपोर्ट करेगा। ये सारे हमारी प्लानिंग में होने चाहिए, स्टेक होल्डर्स।
यूनिवर्सिटी का ऑफिसर का नाम हमारी चेन में होना चाहिए, जो हमें पैथोलॉजी रिलेटेड, ब्रीडिंग रिलेटेड, एग्रोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। वो हमारी चेन का पार्ट है, क्योंकि उसके सजेशन से आपका फाइनल आउटपुट अफेक्ट करेगा। आपका सप्लायर फिक्स होना चाहिए, सीड सप्लायर ये एजेंसी, फर्टिलाइजर सप्लायर, आपका पूरा प्लानिंग पेपर पे प्लान होना चाहिए। तब हम बोलेंगे एग्रीकल्चर सप्लाई चेन। डेटा वी डोंट हैव, हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है 5 साल में क्या चीज आए, कोविड से कंज्यूमर बिहेवियर आए, किस तरह के टोमेटोज कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, कौन सी वैरायटी है जो कंज्यूमर को पसंद आ रही है। नो डेटा वी हैव इन दैट रिगार्ड। प्री प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन, प्री प्रोडक्शन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चैलेंज है विच वी आर नॉट डूइंग। प्रोडक्शन हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, लेबर अवेलेबिलिटी नहीं है, हाई कॉस्ट ऑफ लेबर है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, फार्मर के पास प्रॉपर व्हीकल नहीं है टू ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट टू डिफरेंट मार्केट्स, नॉट ओनली इन हिज ओन लोकेशन बट अदर स्टेट्स, उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। तो दी आर द, अगर वेदर चैलेंज आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अनवांटेड रेन्स, व्हाट टू डू? फार्मर के पास क्या कोई प्रिकॉशनरी मेथड है इसको, इससे बचने के लिए? क्या फार्मर के पास नेट हाउस है, ग्रीन हाउस है? प्लानिंग, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ये जो चीज है ना, इसे हम बोलते हैं, और यही फार्मर को पहले बनाना है एज एन एग्री, हमें, एंड देन वी विल बिकम अ सक्सेसफुल, नॉट, चीज को आज हम डिफाइन करेंगे। सो एग्रीकल्चर अब नो लॉन्गर क्रॉप्स है। आप डेवलप कंट्रीज में जाइए, आप डेवलपिंग कंट्री लाइक चाइना की बात करिए, हाउ फोकस्ड प्रोडक्शन दे आर इन, व्हाट दे आर डेवलपिंग इन देयर फील्ड। चाइना, जापान जैसी कंट्रीज में 75% फार्मर्स नहीं है, वहां पे 10 to 20% फार्मर्स ही हैं एग्रीकल्चर के लिए। हमारे जैसे कंट्री की तरह 65% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं है। चाइना में सिर्फ 21-25% लोग हैं जो फार्मिंग करते हैं, बट इन द अदर डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जापान में परसेंट से कम लोग फार्मिंग करते हैं, यूएसए यूके में 3 से 7% लोग ही फार्मिंग करते हैं, फिर भी वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि उनका फोकस क्रॉप नहीं है, उनका फोकस है एग्री बिजनेस, उनका फोकस है स्टोरेज फैसिलिटी, पैकेजिंग फैसिलिटी, कंबाइनिंग कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिव मार्केटिंग, मार्केट एक्सेस एंड राइट टाइम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दीज पर्टिकुलर कंट्रीज। अगर आज भी हम अपनी कंट्री में क्रॉप फोकस रखेंगे तो वी विल नेवर बी सक्सेसफुल इन एग्रीप्रेन्योरशिप एंड एग्री बिजनेस। हमारा फोकस होना चाहिए कंट्रोल ऑफ प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी, production activity and post production activity in order to develop an effective supply chain system in Indian agriculture sector. तो मैंने आपको ये स्लाइड पहले भी दिखाई थी, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको बताने जा रही हूँ, वो है टॉक अबाउट वैल्यू। वैल्यू की बात करिए, सब कंपनीज वैल्यू की बात करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक 4 व्हीलर लेने जाइए, आप एक 4 व्हीलर लेने जाइए, सबसे पहले वो आपके बच्चे को देखकर बोलेगा कि इसमें जो है कि ये जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है वो सारी चीजें हैं। समझ में आ रहे हैं आपको? वो टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। समझ में आ गया? तो फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अ बेसिक एग्जाम्पल दैट व्हेन यू गो टू बाय अ रेफ्रिजरेटर, आप फ्रिज खरीदने जाइए। मैं 3 साल पहले फ्रिज लेने गई थी, और मैं क्रोमा वाली दुकान पे गई थी, क्रोमा में फ्रिज लेने के लिए। मैंने फ्रिज देखा जिसके अंदर वाटर डिस्पेंसर था, हॉट एंड कोल्ड वाटर, समझ में आया। वाटर डिस्पेंसर फ्रिज साथ में है। मैंने देखा फ्रिज के अंदर टीवी लगा हुआ है, तो मैंने शॉपकीपर से पूछा, मैंने कहा व्हाट इज द नीड ऑफ टेलीविजन इन द रेफ्रिजरेटर? तो उसने मुझे बताया कि मैम, जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो डिसीजन लेती हैं कि घर में कौन सी ब्रांड का फ्रिज आएगा, और जब हाउसवाइफ डिसाइड करती हैं तो उनके लिए कुछ फीचर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बताया कि मैम, सबसे ज्यादा हाउसवाइफ किचन में
8:30 से 9 या 10 के बीच में रहती है शाम को, जब उनके सारे डेली सोप्स निकल जाते हैं, जो भी मेन सीरियल्स होते हैं टेलीविजन पे वो उसी टाइम पे आते हैं। तो कंपनी ने, और ज्यादातर हम फ्रिज किचन में रखते हैं, तो अब जो फीमेल्स हैं वो कुकिंग के साथ साथ टीवी भी इंजॉय कर सकती हैं। समझ में आ रहा है आपको? मैं एक बात कर रही हूं, वो है वैल्यू। वैल्यू का मतलब है आप अपने प्रोडक्ट में कितना बेनिफिट दे रहे हो कंज्यूमर को, आज वो इंपॉर्टेंट है। सारी कंपनीज रेफ्रिजरेटर बना रही हैं, आपकी कंपनी अलग क्या कर रही है? सैमसंग बोल रही है कि मेरा फ्रीजर फ्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज कन्वर्टेबल। सैमसंग बोल रही है मेरा फ्रिज आपको दही भी बनाकर देगा, दही बनाने की मशीन है। हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये ही मैटर करता है। एज अ फार्मर आप दूसरे फार्मर से क्या अलग कर रहे हो, वो आपको डिफाइन करना है इस टर्म से, वैल्यू। वैल्यू का फॉर्मूला होता है बेनिफिट पर कॉस्ट। बेनिफिट का क्या मतलब है? और क्या दे रहे हो? टमाटर तो सभी दे रहे हैं, टोमेटोज तो सभी दे रहे हैं, आप ऐसा क्या टोमेटो में दे रहे हैं जो बाकी फार्मर से अलग है? ये आपको प्रूफ करना है एज अ फार्मर एंड एज अ एग्रीप्रेन्योर। होप यू मे अंडरस्टैंड। सो ट्रेडिशनल और मॉडर्न एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में क्या डिफरेंस है? मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रेडिशनल वैल्यू चेन कमोडिटी की बात करते हैं। कमोडिटी का क्या मतलब है? टोमेटो। और प्रोडक्ट का क्या मतलब है? ब्रांडेड टोमेटो। समझ में आ रहा है आपको? माई टोमेटो इज ब्रांडेड, इट इज हैविंग अ नेम एंड आई कैन डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर टोमेटोज इन द मार्केट। ट्रेडिशनल वैल्यू चेन लोकल मार्केट पे डिपेंडेंट रहती है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी बार वेजिटेबल फार्मर्स की स्टडी करी है इन गुजरात। सारे वेजिटेबल फार्मर्स मुझे बोलते हैं कि मैम पंचायत जहाँ जहाँ पेड़ होता है वहां पे मीटिंग्स होती हैं, सुबह वहां पे एक ट्रेडर अपनी गाड़ी लेके आता है, हम सारे फार्मर जाकर उसको अपना प्रोड्यूस दे देते हैं, और वो हमें जो भी प्राइस पे देता है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें बाकी झमेले में नहीं पड़ना, हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं जाना, हमें दूसरी मंडी नहीं जाना, क्योंकि हमारा प्रोड्यूस खराब हो जाएगा। तो जो भी ट्रेडिशनल फार्मर्स है ना, वो लोकल मार्केट पे ही डिपेंडेंट है, अपने 5 से 10 किलोमीटर के रेडियंस में प्रोड्यूस को बेच देना, जहां पे आपको प्राइस नहीं मिलेगा। आपको डिस्टिंक्ट मार्केट्स पे फोकस करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। डिस्टिंक्ट मार्केट का मतलब है अदर स्टेट्स, अदर कंट्रीज, जहां पे उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, जहां पे वो आपको कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी है, क्योंकि उनके पास सप्लाई की शॉर्टेज है। मल्टीपल इंटरमीडियरीज, जो पुरानी सप्लाई चेन्स है, बहुत सारे चैनल पार्टनर्स मिलेंगे, होलसेलर भी होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे, बहुत सारे रिटेलर, आपको यही नहीं पता चलेगा कि आखिर में आपका वो टोमेटो गया कहाँ। इतने सारे इंटरमीडियरीज होंगे और आप पेपर पे चेन नहीं बना पाएंगे, आपको नहीं पता होगा प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में कौन कौन लोग मेरे साथ थे। इट इज नॉट कॉल्ड एज सप्लाई चेन। लो ट्रेसेबिलिटी, क्वालिटी का तो कोई फोकस नहीं है, क्वांटिटी का भी कोई फोकस नहीं है। जो पुरानी ट्रेडिशनल चेन्स हैं उनका वो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि मेरा टोमेटो बाकी टोमेटो से कैसे अलग है, क्योंकि कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स ही नहीं पता उनको, ना वैरायटी में डिफरेंट है, ना कोई फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट है, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। बट जो मॉडर्न वैल्यू चेन है ना, वो बात करती है मार्केट की। मुझे पता है कि इन टोमेटोज की कहाँ डिमांड है, कौन सी कंपनी मेरे टोमेटोज लेके जाएगी। That is what is important in this particular segment. For example, डाबर कंपनी है, HUL कंपनी है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है फॉर देयर रॉ मटेरियल। समझ में आ रहा है? मैकेन जैसी कंपनी है, वो पोटैटोज के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है गुजरात के अंदर। तो वो पोटैटोज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है कि मुझे वही फार्मर के पोटैटोज चाहिए जो 500 ग्राम ईच है। एक पोटैटो का क्या साइज होगा? 500 ग्राम, और उसकी वैरायटी रोबस्टा होनी चाहिए। मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन। मैं पोटैटोज ग्रो कर रहा हूं, पर मंडी के लिए ग्रो नहीं कर रहा। मैं पोटैटोज किसके लिए ग्रो कर रहा हूं? मैं पोटैटो ग्रो कर रहा हूं
बालाजी कंपनी के लिए, पेप्सिको कंपनी के लिए और मैकेन कंपनी के लिए। यानी फार्मर को पता होना चाहिए फॉर whom आई एम ग्रोइंग, मैं किसके लिए इतने एफर्ट लगा रहा हूं और कौन है जो मुझे मैक्सिमम प्राइस दे सकता है। मेरा टारगेट लोकल मार्केट नहीं होना चाहिए, मेरा टारगेट डिस्टिंक्ट मार्केट होना चाहिए। मैं इंटीग्रेटेड चेन फोकस होना चाहिए। आप कॉपरेटिव्स बनाओ, फार्मर कॉपरेटिव्स बनाओ, आप एफपीओज बनाओ। आपके पास बार्गेनिंग स्किल नहीं है, आप 100 फार्मर को जोड़ के रखो एंड देन यू डू योर बिजनेस। आपकी स्किल बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वालिटी फोकस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आप क्वालिटी फोकस नहीं लाओगे ना, अभी कल परसों ही आई वॉज रीडिंग इन द न्यूज पेपर दैट जापान हैज बैंड सम ऑफ आवर मैंगो वेराइटीज इन देयर कंट्री। वी वर एक्सपोर्टिंग, हम मैंगो जापान को एक्सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने हमारे कुछ मैंगो वेराइटीज को बैन कर दिया है बिकॉज ऑफ सम इंसेक्ट प्रॉब्लम। नाउ कुड यू इमेजिन, जब तक हमारी कंट्री के फार्मर्स क्वालिटी ओरिएंटेशन प्रोडक्ट नहीं करेंगे, आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के पास स्टैंडर्ड्स होते हैं। उनके पास आप अगर ओकरा या भिंडी को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका डायमीटर, विड्थ सब सेम होनी चाहिए, कलर सेम होना चाहिए, वैरायटी सेम होनी चाहिए। ये चीजें यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत जरूरी है। आज आप मंडी में जाओ, आपको खुद को टोमेटो 5 टोमेटो भी एक से नहीं मिलेंगे, वो भी आप खुद सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके खरीदोगे 80 रुपीज देकर। फार्मर ने 10 रुपीज में बेचा, आप 80 रुपीज में खरीदोगे, बट आप खुद ढूंढोगे कि शायद मुझे 5 टोमेटो सेम साइज के मिल जाए, सेम कलर के मिल जाए, रेड मिल जाए, नहीं मिले। सो क्वालिटी फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, ये नीड ऑफ द आवर है। आप ग्रेड करके प्रोडक्ट बेचो, आपको डेफिनेटली ए ग्रेड का मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, पर आप मिक्स करके बेचोगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी रिटर्न नहीं देगा। ट्रेसेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वील स्टडी फर्दर। सो ट्रेडिशनल और मॉडर्न सप्लाई चेन में जो है फार्मर का शेयर हमेशा 10 से 20% ही रहेगा, आप नहीं बढ़ा सकते। ट्रेडिशनल चेन में रहोगे, आपको फार्मर शेयर, जो मैं आपको बोल रही थी, कंज्यूमर ने 100 रुपए दिए, फार्मर को कितना मिला? 10 रुपए। बट अगर आप मॉडर्न वैल्यू चेन पे फोकस करोगे तो आप कंज्यूमर के रुपीस में से 80% ले सकते हो वापस। ये हमारा फोकस है। मोर शेयर ऑफ फार्मर इन कंज्यूमर रूपी। मैंने 1 रुपए का पेमेंट किया तो 80 से फार्मर को वापस जाने चाहिए। दैट इज वैल्यू चेन इंटीग्रेशन। सो अब हम आते हैं कि वैल्यू का मतलब क्या है। मैंने आपको वैल्यू का डेफिनेशन बताया। वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट पर कॉस्ट। मैं मोबाइल फोन लेने जाती हूँ, कंपनी जो रिटेलर है वो मुझे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल और भी होगा, मोटरोला होगा, बहुत सारी कंपनीज के मोबाइल दिखाता है। मैं कौन सा मोबाइल चूज करूंगी जिसमें मुझे मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आज लोग एप्पल कंपनी से भी मोबाइल ले जिसका कॉस्ट है 2 लाख रुपीस। एप्पल कंपनी का एक मोबाइल 1.5 से 2 लाख या 1 लाख का आता है। लोग ले रहे हैं, लोग लाइन लगाते हैं, लोग टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो खिंचाते हैं कि मैं वो पहला बंदा था इंडिया में जिसने एप्पल का 17 प्रो मैक्स लिया, आई एम द फर्स्ट वन। अचीवमेंट मानते हैं उसको। कंपनी 1 लाख और 1.5 लाख ले रही है आपसे, बाकी ओप्पो, वीवो आपको 20,000 में भी फोन दे रहे हैं, बट लोग क्यों 1.5 लाख लेने के लिए रेडी है? क्योंकि कंपनी आपको बेनिफिट देती है जो और कंपनीज नहीं दे पा रही है। वैल्यू फॉर मनी। लोग 1.5 लाख लेकर भी दुखी नहीं होते, उनको पता है हमें प्रीमियम प्रोडक्ट मिला है, हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिला है और हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिला है जिससे कंपनी उस पर फोकस करती है। आपको ये बता दूं कि एप्पल सिर्फ ऐसी मोबाइल कंपनी है जो अपना पुराना प्रोडक्ट वापस लेती। आज आप एप्पल का आईफोन 5 भी वापस सेल कर सकते हो टू द कंपनी। सैमसंग, वीवो, मोटरोला और ओप्पो जैसी कंपनी आपको थर्ड डे भी एंटरटेन नहीं करेगी और बोलेगी कि सर इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं, या दे मे बी डिफरेंट थिंग्स, but what we are relating to it is that
कि कंज्यूमर आपको हाई प्राइस देने को भी रेडी है, आप उसको बेनिफिट दो, आप उसको हाई प्राइस पे वो बेनिफिट्स दो जो अदर कंपनीज नहीं दे रही है। तो हमें अभी क्या बनाना है, वैल्यू चेन बनाना है अपने फार्मर्स के लिए। हमें अपना वैल्यू चेन मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना है। अभी तक मैं आपसे सप्लाई चेन की बात कर रही थी, है ना। सप्लाई चेन का मैं आपके साथ जो भी लोग जुड़े हैं उनको आप पेपर पे लिख लो और उनके साथ आप मिलजुल कर नेटवर्किंग के साथ काम करो और ये इंश्योर करो कि आपका प्रोडक्ट सही टाइम पे मार्केट में पहुंच जाए। वो सप्लाई चेन होता है। वैल्यू चेन क्या होता है फिर? सबसे पहले आप ये मॉडल को डिस्क्रिप्शन अच्छे से देखिए, फोटो में आपको दिखेगा कि सप्लाई चेन कहां से स्टार्ट हो रहा है, रॉ मटेरियल से। यानी सप्लाई चेन में हम सबसे पहले क्या फोकस करेंगे, सप्लायर। मुझे सीड कौन देगा, फर्टिलाइजर कौन देगा, मुझे इरिगेशन फैसिलिटी के लिए क्या करना है, मुझे क्रेडिट के लिए क्या करना है, ये सारा फोकस है सप्लाई चेन, यानी सप्लायर से कस्टमर तक। वैल्यू चेन कहां से स्टार्ट हो रहा है, कस्टमर क्या चाहता है वहां से। और यही चीज हमें सीखनी। हम तब तक प्रोडक्शन डिसीजन नहीं लेंगे तब तक हमें ये नहीं पता लग जाता हु इज माय कस्टमर। कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स हम प्रोडक्शन प्लान करेंगे। हमारा वैल्यू चेन डेवलपमेंट करने का मोटिव है अंडरस्टैंड हु इज योर कस्टमर। फाइंड आउट करिए मैं ये टोमेटोज किसके लिए ग्रो कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं टोमेटो HUL कंपनी के लिए ग्रो कर रहा हूं क्योंकि वो इन टोमेटो से केचप बनाएंगे। अगर आप सब एग्रीकल्चर से ही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टोमेटो स्टेबल पर्पस अलग होते हैं, टोमेटो फॉर कुकिंग अलग होते हैं एंड टोमेटो फॉर मेकिंग टोमेटो केचप डिफरेंट होते हैं। अगर आपको टोमेटो से टोमेटो केचप बनाना है तो उसकी स्किन बहुत पतली होनी चाहिए, पल्प कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, जूस कंटेंट मिनिमम होना चाहिए, सीड मिनिमम होने चाहिए, तब आपको केचप का क्वांटिटी अच्छा मिलेगा, कलर अच्छा मिलेगा। अगर आपने टोमेटो ग्रो कर दिए पर आपको यही नहीं पता कि ये टोमेटो कौन यूज कर रहा है, देयर इज नो प्रॉफिट यू विल जनरेट। कस्टमर रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। क्या मैं एक एग्रो प्रोसेसिंग फर्म को देने वाला हूं, क्या मैं कस्टमर को देने वाला हूं, क्या मैं वड़ा पाव बनाने वाली शॉप को देने वाला हूं। अंडरस्टैंड योर कस्टमर, अंडरस्टैंड देयर बाइंग बिहेवियर, अंडरस्टैंड देयर नीड एंड देन मेक योर प्रोडक्ट। अगर मैं आपको आज एप्पल जैसी कंपनी का एग्जाम्पल दे रही हूं, वो वैल्यू सेंट्रिक अप्रोच पे काम करते हैं। वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कस्टमर के डिमांड को मैच करते हैं, उनको उस लेवल का कॉन्फिडेंस और उस लेवल का फीचर्स दे पाते हैं जिसके लिए वो 2 लाख देने के लिए भी रेडी है। लोन पर फोन ले रहे हैं लोग 2 लाख पर, क्योंकि कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है, वो उस प्राइस पे जस्टिफाई कर रहे हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, सप्लाई चेन बनती है तो सप्लायर को पहले समझा जाता है और जब वैल्यू चेन बनती है तो कस्टमर को पहले समझा जाता है। मेरे लिए एक बहुत बड़ी पॉइंट ये है कि हमें दोनों ही एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं है। ना तो अभी तक हम सप्लाई चेन पे बात कर पाए हैं इंडियन एग्रीकल्चर फार्मर्स के साथ, ना हम वैल्यू चेन पे बात कर पाए हैं। हम आज भी एक घिसी पीटी टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो है मार्केटिंग चैनल। और अगर आप सही तरीके से मार्केटिंग चैनल को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया में मार्केटिंग चैनल भी नहीं है एग्रीकल्चर के अंदर। ये दोनों कॉन्सेप्ट तो बहुत दूर है। जब मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करती हूं तो दे आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट वैल्यू चेन। बहुत सारी कंट्री सप्लाई चेन मॉडल्स भी अपना रही हैं। इंडियन एग्रीकल्चर आज भी इन चीजों से बहुत दूर है और हमें इसी पे फोकस करना है, या तो हम सप्लाई चेन बना पाए या वैल्यू चेन बना पाए। दोनों ही एडवांटेजियस हैं फॉर द फार्मर्स। इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ना। अगर आप अपने पेपर पे अपना डायग्रामेटिक अपना प्लान बना पाओ, फार्मर, सप्लायर, स्टेक होल्डर्स, कस्टमर,
ये सब आपको पता है तो आपका वैल्यू चेन बहुत अच्छे से डिफाइन होगा, बहुत अच्छे से आप कंट्रोल कर पाओगे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इफेक्टिवली वैल्यू चेन को फोकस करके दे आर लीडिंग द मार्केट। सबसे बड़ी चीज है वैल्यू चेन से आप अपना प्रोडक्ट लॉसेस या वेस्टेज कम कर पाओगे। जो हम अभी फोकस करना चाहते हैं, $13 बिलियन का पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का वेस्टेज, वो आप क्लियरली कंट्रोल कर पाओगे। आपका इन्वेस्टमेंट और रिस्क शेयर्ड होगा। आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स आपने अपने साथ लेकर चले हैं वो आपके साथ रिस्क शेयरिंग करेंगे। आपकी सक्सेस उनकी सक्सेस है और आपके चैलेंजेस उनके चैलेंजेस हैं। पर आप जब हर साल सप्लायर बदलोगे, आपका हर साल सीड रिटेलर चेंज हो जाता है, हर साल इनपुट रिटेलर चेंज हो जाता है, तो आपका चैलेंज उसका चैलेंज नहीं रहेगा। पर अगर आपने ये लिख दिया कि धर्मा डीलर ही मेरे को 5 साल तक रॉ मटेरियल देगा, तो आपका चैलेंज उनका चैलेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? लॉन्ग टर्म नेटवर्किंग, आपको अपने पेपर पे 5 साल तक ये प्लान में चेंज नहीं करना है, आपको इंप्रूव करना है बस। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आप कस्टमर को बेनिफिट्स दे पाओगे, आप कस्टमर्स को उसके डिजायर्ड प्रोडक्ट दे पाओगे कि किस तरह के टोमेटोज मुझे डिलीवर करने हैं, तो उस तरीके से आप कस्टमर डिमांड को फोकस कर पाओगे क्योंकि चैनल परफेक्ट है, चैनल में कोई कमी नहीं है, आपका चैनल परफेक्ट है। अगर मैं इसी में बात करूं अमूल मॉडल की, अमूल मिल्क कोऑपरेटिव मॉडल ऑफ गुजरात, अभी अमूल 7 से 8 इंटरनेशनल कंट्रीज में भी पेनिट्रेट हो चुका है। अमूल अब एक इंटरनेशनल ब्रांड है जहां वो इंटरनेशनली प्रोडक्ट फोकस कर रहा है। अमूल किससे बना है? फार्मर ग्रुप से। 5 लाख से ज्यादा फार्मर्स अमूल के साथ जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? डिफाइंड है, मिल्क फार्मर देंगे, हम प्रोसेस करेंगे, पैक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब तक आप अपना मॉडल डिफाइन नहीं करोगे, जब तक आप अपना चेन को फोकस नहीं करोगे, यू कैन नॉट बिकम अ गुड एग्रीप्रेन्योर। आप प्रोड्यूसर ही बन के रह जाओगे। हमें ये डेवलप करना है जहां पे हम डिफाइन कर सकें कि हम किस तरीके से जो है अपना प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे टू द डिजायर्ड कस्टमर। आप प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस कर पाओगे। नहीं तो हमेशा फार्मर का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, फोकस ऑन क्वांटिटी, कितना हुआ कितना हुआ। नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट क्वालिटी। कितने फार्मर्स हैं जिनका प्रोड्यूस इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्ट हो सकता है? लेस देन 10%। लेस देन 10% से हमारा एक्सपोर्ट मार्केट चल रहा है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन इतना ज्यादा है, पर कोई भी फार्मर क्वालिटी फोकस प्रोडक्शन नहीं फोकस कर रहा है। क्वांटिटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव, yield is the main objective, but today in the world of globalization important thing is quality पे जब तक आप फोकस नहीं करोगे तो आप एग्जिट नहीं कर सकते मार्केट के अंदर, आप स्टे लॉन्ग नहीं कर पाओगे। इंक्रीजिंग सेल्स, डिसिमिनेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि आपका फोकस क्वांटिटी से क्वालिटी पे आ जाएगा। आप खुद सोचोगे कि अब मैं कैसे मेरा सब सेट है, मेरे मेरे मिडिल मैन सेट है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेट है, नाउ आई शुड टॉक अबाउट इनोवेशन। मैं क्या नया करूं? खुद सोचोगे क्योंकि आपके पास सब प्लान होगा तो आप नया सोच पाओगे। हर साल वही प्रॉब्लम, सीड के लिए नया रिटेलर ढूंढना, प्रोडक्शन के लिए जो है आपके पास वेदर चैलेंज आ जाता है, क्लाइमेट, क्योंकि आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट चेन मैनेजमेंट अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं प्रॉपरली, हम अपना चेन डिजाइन करते हैं, उसके अंदर हर लेवल पर बेनिफिट को डिफाइन करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एज अ फार्मर एप्पल को हार्वेस्ट किया, ठीक है, आई हार्वेस्टेड एप्पल्स। अब मेरे एप्पल्स मेरे फार्म से डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, होलसेलर के पास गए, रिटेलर के पास गए और कंज्यूमर के पास गए। बस उसमें क्या हुआ? एक्सचेंजिंग सेम एप्पल्स। मेरे फार्म से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ले लिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने वही एप्पल उठाकर होलसेलर को दे दिए, होलसेलर ने वही एप्पल उठाकर और रिटेलर्स को दे दिए और रिटेलर ने वही एप्पल उठाकर कंज्यूमर को दे दिए।
नो बेनिफिट क्रिएशन, नो बेनिफिट। सेम एप्पल्स, क्या हुआ? मिडिलमैन ने क्या किया? सिर्फ ट्रांसपोर्ट किया। व्हाट इज वैल्यू चेन मैनेजमेंट? वैल्यू चेन का मैनेजमेंट है, मैंने फार्मर से एप्पल लिए, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैंने सॉर्टिंग ग्रेडिंग किया। समझ में आ रहा है? यानी कि होलसेलर ने क्या ऐड किया या डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या ऐड किया? बेनिफिट ऐड किया, सॉर्टिंग ग्रेडिंग कर दी। तो अब जब नेक्स्ट लेवल पे गया तो दूसरे जो होलसेलर है उसने क्या किया? ब्रांडिंग कर दिया, पैकेजिंग कर दिया, बॉक्स के अंदर डाल दिया, स्टिकर लगा दिया एप्पल पे, किसी ने वैक्सिंग कर दी एप्पल पे विच इज एडिबल, वैक्स कोटिंग कर दी कि अब जब एप्पल जाएगा तो उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी, लॉसेस कम होंगे। वैल्यू चेन मैनेजमेंट का मतलब है कि जिसके हाथ में भी प्रोडक्ट आएगा वो उसमें बेनिफिट इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं हमें आज हमारी सप्लाई चेन वीक क्यों है? क्योंकि सारे मिडिलमैन मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने 2 रुपए कमाए, मैंने 4 रुपए कमाए, फार्मर से 10 रुपए में लिया, कंज्यूमर तक 80 रुपीज हो गए, यानी रिटेलर बोलेगा मैंने 50 रुपए कमाए पर केजी। दिस इज नॉट बिजनेस। बिजनेस इज कि आप कमाओ पर फार्मर को भी उतना रिटर्न मिलना चाहिए। सो दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन, वैल्यू चेन मैनेजमेंट। यानी अगर कंज्यूमर ने 100 रुपीज में खरीदा है तो 80 फार्मर को आना चाहिए, तब तक हम एग्री बिजनेस नहीं बोलेंगे। वी आर फेलिंग इन एग्री बिजनेस सिस्टम। तो डिफरेंस क्या है मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि सप्लाई चेन से ज्यादा ब्रॉडर वैल्यू चेन है, पर हम सप्लाई चेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट हमें ये तो पता हो कि 5 साल तक हमारे इनपुट सप्लायर्स कौन है, 5 साल तक हम क्या करने वाले हैं, हमारे पेपर पे क्या मॉडल डेवलप हुआ है फार्मिंग का, और उसके बाद आप वैल्यू चेन पे शिफ्ट हो सकते हो। पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि लेटेस्ट ट्रेंडिंग मॉडल है वैल्यू चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट फोकस करता है ट्रांसपोर्टेशन पे, कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक प्रॉफिट के साथ मूव हो। बट वैल्यू चेन का मतलब है कस्टमर ओरिएंटेड डिस्ट्रीब्यूशन। उसी कस्टमर को प्रोडक्ट जाएगा जिसने जिस तरीके से डिमांड किया है। Both of these are very, very important in strengthening the Indian agriculture sector, but we are lacking in both these models. We are not focusing either on supply chain nor value chain. International market ऑलरेडी वैल्यू चेन अडॉप्ट कर चुका है, वहां की बहुत सारे सेक्टर्स वैल्यू चेन से सप्लाई चेन से वैल्यू चेन पे आ चुके हैं। तो चेंजिंग एग्रीकल्चर लैंडस्केप, I'll skip because we are moving shortage of time. I'll just focus on ये मैंने बताया आपको कि हमें ये क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा वैल्यू चेन और सप्लाई चेन के अंदर। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, व्हाई टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इससे आपकी सप्लाई चेन किसके लिए बनाना है, क्यों बनाना है, कब बनाना है, कितने लेवल का प्रोडक्शन चाहिए, कितना क्वांटिटी का प्रोडक्शन चाहिए और किस लेवल के कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, ये सारे डिसीजंस ही हमारी सप्लाई चेन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। वैल्यू चेन थिंकिंग आएगी कैसे? सबसे पहली चीज है कंज्यूमर सर्वे, कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करना, कंज्यूमर क्या प्रोसेसिंग यूनिट है, कंज्यूमर क्या एक्सपोर्टर है, कंज्यूमर क्या कुकिंग के लिए लेना चाहता है आपके टोमेटोज। अंडरस्टैंड करिए आपके टोमेटो की नीड किसको है, समझ में आ रहा है? उस कंज्यूमर के अकॉर्डिंग आप प्लान करिए कौन सी वैरायटी ग्रो करनी है, कब ग्रो करनी है, कंज्यूमर को कौन से सीजन में चाहिए, और इस तरीके से आप अंडरस्टैंड करिए कंज्यूमर को, डिमांड को। दैट इज व्हाट वैल्यू चेन थिंकिंग। वेस्टेज रिड्यूस करिए, एनालाइज करिए कि किस तरीके से मेरे वैल्यू चेन के अंदर मैं अपना वेस्टेज परसेंटेज रिड्यूस कर सकती हूँ जिससे हमको मैक्सिमम एडवांटेज हो। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि हार्वेस्टिंग तक मेरा सब कुछ अच्छा चलता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग मैक्सिमम टोमेटोज मेरे वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि मेरे पास स्टोरेज नहीं है, मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है, या माय कंज्यूमर इज नॉट रेडी टू बाय। उसको अंडरस्टैंड करिए। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कैसे मिनिमम करना है टोमेटोज के अंदर। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं जहां पे विमेन एंटरप्रेन्योर टोमेटो को ड्राई कर रही हैं डिहाइड्रेटर से या सन ड्राइंग से।
टोमेटो का वेस्टेज कम करने के लिए धूप में सुखा दिए टोमेटोज, और टोमेटो का जो डिहाइड्रेटेड टोमेटोज है उनका इंटरनेशनल प्राइस बहुत ट्रिपल है। मैं ट्रिपल भी नहीं बोलूंगी, 5 टाइम्स है। आप एक बार गूगल करिए, अमेजोन पे डालिए ड्राइड टोमेटोज, डालिए आप एक बार ड्राइड टोमेटोज, आप प्राइस देखिए ड्राइड टोमेटोज की। समझ में आ रहा है? रिड्यूस वेस्टेज। आप ऐसी साइकिल बनाइए, ऐसा सिस्टम बनाइए जहां पे आप पोस्ट हार्वेस्ट को 30% से 2 to 3% लेके आ जाओ। डिलीवर कस्टमर रिक्वायरमेंट। आप कस्टमर को उसी वे में प्रोवाइड करिए जिस वे में वो चाहता है। समझ में आ रहा है? वो टोमेटो पाउडर चाहता है, टोमेटो प्यूरी चाहता है, रेड टोमेटोज चाहता है, स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ टोमेटो चाहता है, कब चाहता है, क्यों चाहता है, कैसे चाहता है, ये सब अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर इज द किंग, ही विल ऑलवेज बी द किंग। समझ में आ रहा है आपको? दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप ब्लिंकिट को देखिए, वो सुबह 6 बजे तक, रात के 2 बजे तक आपको डिलीवरी दे रहा है। At 11 o'clock one day I was without milk, मेरे घर पे दूध नहीं था, and I ordered from Blinkit at 11:30 रात को, जहां कोई भी किराना स्टोर मुझे मिल्क सप्लाई के लिए रेडी नहीं था, वहां ब्लिंकिट ने मुझे रात को 11:30 बजे मिल्क लाके दिया। एंड दैट इज डिलीवरी ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है आपको? ब्लिंकिट आज एक ऐसा सिस्टम है जो आपको कन्वीनियंस दे रहा है घर बैठे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फ्यूल प्राइस बढ़ गया है, हमें हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है, पर ब्लिंकिट आपको घर पर आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लाके देगा। दिन में 5 बार आएगा, पर आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लाके देगा। ब्लिंकिट ने एक नई सर्विस स्टार्ट करी है विच इज एम्बुलेंस। मेट्रो सिटीज में आप ब्लिंकिट से एम्बुलेंस बुक करा सकते हो, जिसका कॉल हॉस्पिटल वाले नहीं उठाते। ऐसा बोला जाता है कि हमने एम्बुलेंस को कॉल किया था, नहीं आई, ब्लिंकिट एम्बुलेंस भेज सकता है। समझ में आ रहा है? ब्लिंकिट रात को आपको फोटो कॉपी लाकर दे सकता है। आपको कोई जेरोक्स चाहिए, ब्लिंकिट को अपना अपना डॉक्यूमेंट शेयर करो, रात के 2 बजे तक बहुत अच्छे एनवलप में आपको जेरोक्स पेपर लाकर देगा। दिस इज व्हाट इज कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो हमें एग्रीकल्चर में लेके आना है। बिल्ड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बिना नहीं होगा। आप हर साल रिटेलर बदलोगे, हर साल डीलर बदलोगे, हर साल कस्टमर बदलोगे, डिस्ट्रीब्यूटर बदलोगे, नहीं चलेगा। कंसिस्टेंट 5 साल तक मेरे यही स्टेक होल्डर्स रहेंगे, मैं इन्हीं लोगों के साथ काम करूंगा, क्योंकि इससे ट्रस्ट डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आपके चैलेंजेस उनके चैलेंजेस हो जाते हैं। टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी विद द चैलेंजेस विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। हाउ वी कैन ऐड वैल्यू, कैसे करना है? आपने बोल दिया मैम वैल्यू लाओ, वैल्यू लाओ, बेनिफिट लाओ, करना कैसे है? फॉर्म वैल्यू एडिशन। आप अपने रॉ मटेरियल को किसी फिनिश गुड्स में बदलो। आप फ्रूट से जैम बनाओ, जेली बनाओ, जूस बनाओ। समझ में आ रहा है? कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू मोर पेरिशेबल, लेस पेरिशेबल कमोडिटी। समझ में आ रहा है? नॉन पेरिशेबल बना दो कि हमारा जो प्रोडक्ट है 3 साल तक चलेगा, हमारे ड्राई टोमेटो चिप्स 2 साल तक चलेंगे, हमारा ड्राइड ऑनियन 2 साल तक चलेगा। ऑनियन 20 दिन चलता है घर पे, पर ड्राइड ऑनियन हमारा 2 साल तक चलेगा। तो फॉर्म वैल्यू एडिशन, टाइम वैल्यू एडिशन, आप उसको स्टोर करिए, ऑफ सीजन में सेल करिए, जब प्राइस हाई हो तब सेल करिए। वेयर हाउसिंग इज वन ऑफ द वेरी गुड स्कीम ऑफ आवर कंट्री। स्पेस वैल्यू एडिशन, स्पेस वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है? अपने प्रोडक्ट को उस लोकेशन पे पहुंचाओ जहां पे उसकी मैक्सिमम डिमांड है और लोग कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी हैं। उसको लोकल मार्केट में मत बेचो कि हमने उसका वैल्यू ही खत्म कर दिया। आप उस मार्केट में प्रोडक्ट को पहुंचाओ जहां पे उसका मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। स्पेस वैल्यू एडिशन। डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करो, ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करो, जो हम नहीं करते हैं। इंफॉर्मेशन वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। बताओ मैं एक ऐसा फार्मर हूं जो नेचुरल फार्मिंग कर रहा है और ऐसे प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है जो आपके लिए हेल्दी है। मेरे पोटैटोज, ऑनियन आपके लिए हेल्दी हैं क्योंकि वो केमिकल फ्री हैं और नेचुरल मेथड से बने हैं। मार्केट,
प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन आप डिसाइड करो अपना प्राइस। क्यों क्यों कंज्यूमर डिसाइड करे आपका प्राइस कि मैं टोमेटो इतने में ही लूंगा, ट्रेडर बोलेगा 10 रुपए में ही टमाटर लूंगा। नहीं, आप बोलो मैं 110 रुपीज से कम में टोमेटो नहीं सेल करूंगा, क्योंकि मैं आपको टोमेटोज में ये बेनिफिट दे रहा हूं। काउंट कराओ ना बेनिफिट। आप मोबाइल की दुकान पे जाते हो, वो आपको बताते हैं कि मेरे जो मोबाइल 22,000 का क्यों है, क्योंकि हम आपको ये फीचर्स दे रहे हैं। आप भी बताओ कि मैं आपको टोमेटोज दे रहा हूं बट उसमें ये फीचर हैं जो बाकी फार्मर से अलग हैं। आपको प्राइस भी मिलेगा, बेटर रिटर्न भी मिलेंगे। सो डिलीवरिंग वैल्यू फॉर कस्टमर का क्या मतलब है? प्रोडक्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। Quality is main important with less cost. That is what we are looking forward. Benefit per cost. तो हम फटाफट देखते हैं। फॉर्म वैल्यू एडिशन आप प्राइमरी प्रोसेसिंग भी कर सकते हो। सिंपल क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग। बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा आपको। आप सिंपल क्लीनिंग करो, है ना। हम जैसे हॉर्टिकल्चर में बोलते हैं कि आप जो है प्री कूलिंग मेथड यूज करो। आप एसेप्सिस मेथड मतलब क्लीनिंग द प्रोडक्ट। बहुत लोग क्लीनिंग नहीं करते, मंडी में ऐसे ही आलू को लेके आ जाते हैं, पोटैटो लेके आ जाते, नहीं मिलेगा दाम। पर वेल क्लीन्ड पोटैटो, सेम साइज, यूनिफॉर्म, सारे पोटैटोज का वेट सेम, सारे पोटैटोज का साइज सेम, सारे पोटैटोज जो है यूनिफॉर्म लग रहे हैं, आपको बहुत अच्छी प्राइस मिलेंगे। प्राइमरी प्रोसेसिंग कर सकते हैं हम, सेकेंडरी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जैसे बंगाल ग्राम से बेसन बना दिया। बहुत सारे लोग कच्ची घानी ग्राउंडनट ऑयल सेल कर रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल सेल कर रहे हैं, खुद की कच्ची घानी मशीन से तेल निकालते हैं, तो पैसा मिलेगा आपको। डबल प्राइस पे लोग लेके जाएंगे। आप कस्टमर के सामने प्रोडक्ट बना के दो, वो आपको वैल्यू फॉर मनी देकर जाएंगे। टोमेटो से आपने केचप बना दिया, ग्रेडिंग कर दी, सॉर्टिंग कर दी, पैकेजिंग कर दिया, लेबलिंग कर दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन जनरेट वैल्यू। टाइम वैल्यू एडिशन, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, ऑफ सीजन सेल करो। समझ में आ रहा है? आप ऑफ सीजन के लिए प्रोडक्ट रखो। आप अगर मैंगो को ऐसे नहीं रख सकते हो बिकॉज इट हैज सम शेल्फ लाइफ, आप मैंगो का कोई सेमी प्रोडक्ट बना दो, प्यूरी बना दो, मैंगो चिप्स बना दो, मैंगो पापड़ बना दो। समझ में आया? तो इस तरीके से आप जो है टाइम वैल्यू एडिशन पे फोकस कर सकते हो। अगर मैं आपको, ये मैंने न्यूज़पेपर से लिया है विच इज वेरी वेरी अलार्मिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। जैसे कि मैं बात करूं, हमें 70,000 पैक हाउसेस चाहिए अभी कंट्री के अंदर, हमारे पास सिर्फ 249 है। समझ में आ रहा है? पैक हाउसेस, पैकेजिंग यूनिट्स ही नहीं है। फार्मर कहाँ जाके पैकेजिंग करेगा? तो पैकेज जिसका 70,000 नंबर ऑफ पैक हाउसेस होने चाहिए, हमारे पास सिर्फ 250 है। रेफर ट्रक्स 61,000 ट्रक होने चाहिए, हमारे पास 10,000 से भी कम है, जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल हो जाए, ह्यूमिड कंट्रोल हो जाए। मैं बहुत मेरे मेरे लेक्चर्स में मैं मेरे क्लास के स्टूडेंट्स को फोटोग्राफ दिखाती हूँ, इंडिया में फ्रूट एंड वेजिटेबल कैसे जा रहा है और यूएसए में ट्रक में फ्रूट एंड वेजिटेबल कैसे जा रहा है। हमारे यहाँ पर तो 2 आदमी उस पर बैठ के भी जाते हैं। इज दिस द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट वी गिव टू आवर बिजनेस प्रोड्यूस? आपसे अच्छे तो लोग बाकी नॉन जो ड्यूरेबल गुड्स को रखा जाता है, एक रेफ्रिजरेटर को भी वेल पैक्ड कार्टन में लेके आया जाता है, 4 कड़के लाते हैं। और हमारी फ्रूट एंड वेजिटेबल की हम कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एज अ प्रोड्यूस वी डू नॉट वैल्यू आवर प्रोडक्ट। दैट इज व्हाट इज द सरप्राइजिंग फैक्ट फॉर अ बिजनेसमैन। जब तक आप अपने प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, सामने वाला आपको प्राइस नहीं देगा। कोल्ड स्टोरेजेस हमारे पास 35 मिलियन टन के होने चाहिए, हमारे पास 31 मिलियन टन के हैं। तो दैट मीन्स कि देयर इज अ गैप इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। वैल्यू एडिशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर का साइकिल हार्वेस्टिंग के बाद खत्म हो जाता है, खत्म। लोकल मार्केट में दिया और खत्म। नो, डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर टू सप्लाई, व्हेन टू सप्लाई, हाउ मच टू सप्लाई एंड व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी शुड बी यूजिंग। एक बहुत अलग एक सरप्राइजिंग फैक्टर इंडिया का है कि हम 90% कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं? रोड। वाई रोड? अदर
कंट्रीज में जाइए, अमेजोन भी ड्रोन से प्रोडक्ट पहुंचाता है 3 सेकंड के अंदर। यूएसए यूके जैसी कंट्रीज में ड्रोन आपका सामान 3 मिनट में गेट पे रख के जाएगा, सेकंड्स के अंदर। ड्रोन आया, प्रोडक्ट डिलीवरी। हमारे यहाँ आधा आधा घंटा लग रहा है, अमेजोन को 11 दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं प्रोडक्ट डिलीवरी में, क्योंकि हम इन चैनल्स को यूज नहीं कर रहे हैं। हम एक ही चैनल पे को यूज कर रहे हैं, एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज कर रहे हैं, वो है रोड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। कितने सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। हम इंटरस्टेट एयर ट्रांसपोर्टेशन यूज नहीं कर रहे हैं फॉर पेरिशेबल कमोडिटी। समझ में आ रहा है? अगर नवसारी जहां पे मैं रहती हूँ, वहां से मैं कुछ फ्लावर प्रोड्यूसर से मिली, उनके फ्लावर्स जो हाईली पेरिशेबल है वो भी लोकल ट्रेन में जाते हैं, दिल्ली और मुंबई। मुंबई तो चलो पास में है, यहां से फ्लावर दिल्ली भी लोकल ट्रेन में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चेंज योर मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डोंट रिलाई ऑन द रोड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच इज अनरिलायबल, highly costly due to fuel, and it takes more time. That is why it is important. Choose your appropriate distribution channel. Ensure distribution में हम place, form और time का ध्यान रखें, और right product in right quantity, right place पर पहुंचना चाहिए at right time and right value. Value is very very important. हम फॉर एग्जाम्पल, आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाया, समझ में आया? आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाया और आप अमेजोन पे लिखा था मैं 10 दिन बाद आऊंगा, और जैसे ही वो प्रोडक्ट आपको 5 दिन बाद मिल जाता है ना, आप खुश हो जाते हो, यार 10 डेज बोला था, 5 दिन में मिल गया। लीड टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज लीड टाइम? डिस्ट्रीब्यूशन टाइम। इट शुड बी मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे आप काम करोगे तो आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेंगे फ्रॉम द मार्केट। इंफॉर्मेशन वैल्यू एडिशन, दिस इज द पॉइंट विच आई हैव एडेड। मुझे लगता है इंफॉर्मेशन वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इंफॉर्मेशन वैल्यू एडिशन का मतलब है ब्रांडिंग करिए, क्रिएट योर आइडेंटिटी। उसको बताइए कि मैंगो मार्ट केसर मैंगो चेतन मांदपरा का है। ब्रांडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएट योर पैकिंग, लेबलिंग एंड सर्टिफिकेशन पे फोकस करिए। Take maximum certificates to get multiple exposures. Sales promotion, exhibitions में जाइए, समझ में आ गया? होम डिलीवरी पे फोकस करिए, डायरेक्ट मार्केटिंग पे फोकस करिए, लोगों को बताइए कि हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट। कलेक्टिव मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशंस पे फोकस करिए, कस्टमर रिलेशन पे फोकस करिए, क्लाइंट बेस पर फोकस करिए, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे फोकस करिए कि हर दिन मुझे ये टोमेटोज इन 300 कस्टमर्स को देने हैं। सब्सक्राइब कराइए लोगों को। फार्मर सब्सक्रिप्शन मॉडल यूटिलाइज कर सकता है, सब्सक्राइब करा सकता है। आप एक डेली फ्रूट या वेजिटेबल बास्केट क्रिएट करिए कि डेली मुझे, और उस बास्केट को आप एडवर्टाइज करिए व्हाट्सएप पे कि दे आज की ये बास्केट है, एक बास्केट का प्राइस 500 रुपीज है और उसमें हम ये 10 चीजें दे रहे हैं, कोरिएंडर फ्री है। क्रिएट योर सच विजिबिलिटी इन द मार्केट। इंफॉर्मेशन सिर्फ लेने के लिए नहीं होता है, इंफॉर्मेशन देना भी होता है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो आपके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर रहा है। इंफॉर्मेशन इज नॉट वन वे कि हमें लेना ही है, टीवी से सिर्फ सुनना ही है। खुद भी बताओ कि मैं अलग क्या कर रहा हूं। दैट इज इंफॉर्मेशन। इट इज अ 2-वे प्रोसेस। पर देखिए आप, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, आईटीसी तो पोटैटो को 4 तरीके से बेच रहा है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। पोटैटो को 4 तरीके से बेचना इज मार्केटिंग, इज डिस्ट्रीब्यूशन, इज प्लानिंग। अब आप देखिए बहुत सारे हमारे एफपीओ ब्रांड्स हैं जो खुद के ब्रांड लेकर आ रहे हैं।
हमारा खुद का गुजरात का, साउथ गुजरात का वेबकॉल है, जिसका वृंदावन केसर मैंगो बहुत फेमस है। तो बहुत सारे एफपीओज हैं, कलेक्टिव ग्रुप्स हैं जो ब्रांडिंग पे आ गए हैं, अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस एंड गुड क्वालिटी प्रोड्यूस। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग क्या हो सकते हैं? वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे प्राइवेट ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। एसएफएसी, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम ने एफपीओस के लिए ई किसान मंडी डेवलप करी है। तो अगर आप, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं जो आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए रेडी हैं फॉर सेलिंग योर प्रोडक्ट। ई नाम हमारा पहले से इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, जहां भी एज एन एपीएमसी होल्डर आप पे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ये केस स्टडी मैं आपसे स्पेसिफिकली डिस्कस करूंगी क्योंकि ये हमारा खुद का स्टूडेंट है, चेतन मांदपरा। वो एक ऐसी लिमिट पर पहुंच चुका है ना 2 साल के अंदर, वो मैं आपको बता नहीं सकती। उसका रोज न्यूज़पेपर्स में न्यूज आती है कि ही इज द हाईएस्ट मैंगो एक्सपोर्टर, अ यंग पर्सन जस्ट क्लियर्ड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन। उसने यूजी लेवल से एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। उसके फादर ने 1 रुपीज देने से भी मना कर दिया था कि हमें, तुमको एज अ फार्मर मैं आपको बिजनेस में हेल्प नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक्सपोर्ट को, क्योंकि वो एक मैंगो फार्मर का बेटा है और उसको पता है कि मेरे पापा को मैंगो प्रोडक्शन में कितना लॉस होता है, और मैंगो एक ऐसी इंटरनेशनल डिमांडेड कमोडिटी है, वो भी गुजरात का केसर मैंगो जो जीआई टैग है, जिसके पास जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन है। उसने इसी चीज पर फोकस किया। उसने हमारे कॉलेज से 45 डेज का ट्रेनिंग लिया एंटरप्रेन्योरशिप का, और हमने उसको जो भी सिखाया उसने सब इंप्लीमेंट कर। मैंने उसको बोला फूड सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, मैंने उसको बोला ट्रेसेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, मैंने उसको बोला टेक ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट लो। उसने वो सब इंप्लीमेंट किया। आई टोल्ड हिम अबाउट ट्रेसेबिलिटी, और आज उसके हर डब्बे पर ट्रेसेबिलिटी का क्यूआर कोड है। और वो अभी गुजरात का नंबर 1 एक्सपोर्टर है फॉर नॉट ओनली मैंगो पर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज। उसके पास 11 एफपीओ का एमओयू है जो उसको डायरेक्ट अपना प्रोड्यूस ग्रो करके देते हैं। आई वॉन्ट यू ऑल टू read more on his website about Mango Mart. अब आप देखिए, वो प्रोसेस प्रोडक्ट भी सेल करता है, वो प्रोसेस प्रोडक्ट भी बना रहा है। और मैं आपको, उसने अभी 2 और कंपनी डाली है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, एज एन एंटरप्रेन्योर वो क्यों सबसे अलग है। समझ में आ रहा है? ये चेतन इज डिफरेंट फ्रॉम, उसका माइंड ही गुज्जू माइंड है, टोटली रॉकिंग माइंड। चेतन ने 2 महीने पहले एक नया इनोवेशन लेके आया। आप सबने एग्रो टूरिज्म के बारे में सुना है? एग्रो टूरिज्म, जहां पे आप फील्ड पे जाकर टूरिस्ट जैसे एक्टिविटी कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। उसने अपना एक नया अपने ही लैंड को उसने डिक्लेयर कर दिया मैंगो टूरिज्म स्पॉट। मैंगो टूरिज्म कोई सोच भी नहीं सकता जो नाम उसने दिया है, मैंगो टूरिज्म। आप मेरे लैंड पर आओ और मैंगो फार्मिंग को एंजॉय करो। Ultimately rocking he is doing, and I cannot say how much he could understand what is the gap in the market. वो समझ गया, हमारी क्लासेस जब हमने ली वो समझ गया मैम सप्लाई चेन क्या होता है, वैल्यू चेन क्या होता है, मैंगो में क्या लॉस हो रहा है, और मैं उसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं एज प्रॉफिट। And that is what the example he has given to us as mango farmer to exporter. सर्टिफिकेशन, शयाद्री फार्म, आप देखिए इसके पास भी सर्टिफिकेट्स हैं। इसके पास ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट है। शयाद्री जो एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 25,000 फार्मर ज्वाइंट हैं, उनके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। हर कंट्री शयाद्री फार्म के साथ एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहती है क्योंकि वो हर कंट्री के नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड को मैच कर रहे हैं। बीआरसी सर्टिफिकेशन, एफडीए रेगुलेशन, एचएसीसीपी सर्टिफिकेशन, सब कुछ है इनके पास। ये नंबर
वन एक्सपोर्टर हैं और पोमोग्रेनेट, टोमेटोज एंड ग्रेप्स। हेल्थ कॉन्शियसनेस को कंसंट्रेट करिए। अभी आप देखिए लोग ऑर्गेनिक फूड डिमांड कर रहे हैं, न्यूट्री रिच फूड डिमांड कर रहे हैं, डाइजेशन सप्लीमेंट्स फ्रॉम प्लांट डिमांड कर रहे हैं, स्नैकिंग ट्रेंड मिलेट बाजरे के कुकीज को डिमांड कर रहे हैं, रागी कुकीज को डिमांड कर रहे हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स को डिमांड कर रहे हैं जो हमारे वर्सिनिटी में अवेलेबल है। लोकल फूड, आज मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ऐसे ब्रांड्स आ गए हैं लोकल फूड के अंदर जो अपने कुजीन को इंटरनेशनल बना रहे हैं। सो व्हाई नॉट आप अपने स्टेट के किसी कुजीन को इंटरनेशनल बनाओ, एक ऐसा कुजीन जो इंटरनेशनली डिमांड हो और आप इनोवेशन लेके आओ फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी। एक्सपोर्ट में तो मैं आपको क्या बोलूं, अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है। हम टैप इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पा रहे। अगर जापान हमारे मैंगोस को बैन कर रहा है, दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन। हमारे को फार्मर एंड पे एजुकेशन देना पड़ेगा, व्हाट टू ग्रो, हाउ टू ग्रो, व्हेन टू ग्रो, फॉर हुम टू ग्रो, सिखाना पड़ेगा उनको कि आपको कैसे किस वैरायटी के मैंगोज ग्रो करने हैं, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है जिससे आप इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो कर पाओ। हमारे गुजरात में बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, बट जब भी मैं एक्सपोर्टर्स से मिलती हूं तो मुझे यही लगता है दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। एक्सपोर्टिंग इन इंडिया इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस स्टिल। सिर्फ अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी की वजह से लोग बहुत प्रॉफिट ले रहे हैं, पर एक एजेंसी नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप नहीं है एक्सपोर्टर्स का, और हम उनको हाईटेक कंपटीशन में नहीं ले सकते। वो सिर्फ अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी का फायदा ले रहे हैं, बट दे डू नॉट हैव स्किल्स रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। आप उनसे पूछो आपका हायरार्की क्या है, आपके एमडी कौन है, आपके फाउंडर कौन है, आपके सीईओ कौन है। उनके पास सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जहां पे वो फार्मर से प्रोड्यूस लेते हैं, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करते हैं और फर्दर सेल करते हैं। सो देयर आई हैव वन एग्जांपल ऑफ काशी एक्सपोर्ट। काशी एक्सपोर्टर है हमारे यहाँ पे, मैं वहां पे विजिट करती हूँ तो वहां के जो एक्सपोर्टर हैं वो ऐसा बोलते हैं कि मैम ये अंधा कुआं है, कितना भी निकाल लो इसमें से, इतना है। और मैं तो बोले इतना मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं 2 कंट्री टारगेट करता हूँ और मैं करोड़ों कमा रहा हूँ। दैट इज व्हाट इज untapped potential means. We don't have good organizations whom we can call. Shayadri is obviously an example of good export organization of FPO. बट फार्मर लेवल पे कितने लोग हैं जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट्सएप पे आप एडवर्टाइज करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील बनाइए, यूट्यूब पे अपने वीडियोस डालिए कि मैं किस तरीके से हम फार्मिंग कर रहे हैं, कैसे हम क्वालिटी को फोकस कर रहे हैं, हमारा हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी क्या रहती है, हमारा मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। आप इन सब के बारे में लोगों से बात करिए। कंज्यूमर देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट को आगे लेके जा रहे हैं। दैट इज व्हाट यू नीड टू बी कनेक्टिंग टू योर कंज्यूमर। आज के कंज्यूमर चाहते हैं कि प्रोड्यूसर उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो, वो बीच में मीडिएटर्स नहीं चाहते, वो चाहते हैं आप सीधा उनसे बात करिए, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करिए और उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिलीवरी करिए। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ई कॉमर्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इंडिया मार्ट पे बेचिए, आप एग्रो स्टार से कनेक्ट हुई, एग्री कार्ड मंडी जुड़िए। सिर्फ एक ही मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस मत करिए। आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे किस तरीके से सेल करना है, आपको अमेजॉन पेंट्री में अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, आपको अपनी लोकेशन के ब्लिंकिट में अपना फ्रूट एंड वेजिटेबल कैसे सेल करना है। ट्राई टू गेट दीज एडवांटेजेस। मैं पिछले कुछ लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर मैं अपने ही यूनिवर्सिटी में फार्मर ट्रेनिंग दे रही थी, और उसमें से मुझे 2 ऐसे यंग यूथ मिले जिनके प्रोडक्ट आज अमेजॉन पे अवेलेबल हैं और उनके पास कोई मीडिएटर नहीं है, उन्होंने खुद सीखा। उन्होंने बोला मैम हमने खुद सीखा, अमेजॉन कंसल्टेंट से बात करी और आज हमारे प्रोडक्ट अमेजॉन पर अवेलेबल हैं। दैट मीन्स फार्मर सेल कर सकते हैं।
प्लेटफॉर्म्स पे। हम एक ही मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस नहीं करके मल्टीपल मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करेंगे तो हमारे क्लाइंट बढ़ेंगे, कस्टमर बढ़ेगा, इंफॉर्मेशन होगी, अवेयरनेस बढ़ेगा कि ये फार्मर के प्रोडक्ट सबसे अच्छे होते हैं। तो आपको जो है वर्ड ऑफ माउथ से भी अपना जो है इंफॉर्मेशन डिलीवर करना है। मैं एक मैकडोनल्ड्स का मॉडल के बारे में बात करना चाहती हूँ। आई विल नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर मॉडल ड्यू टू टाइम, बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैकडोनल्ड इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में नंबर 1 कंपनी है जो वैल्यू चेन की बात करती है। समझ में आया? मैं आपको सिर्फ एक होमवर्क दूंगी कि आप यूट्यूब पे मैकडोनल्ड्स का बर्गर का वैल्यू चेन स्टडी करना या सप्लाई चेन। मैकडोनल्ड्स जो अपना एक बर्गर बनाता है ना, उसमें वो सिर्फ एक ही काम करता है, असेंबलिंग। बर्गर का पैटी मैकेन देता है, चीज अमूल या कोई और कंपनी देता है। अमूल का जो लेट्यूस, आपको जो हरा पत्ता मिलता है, उसका फार्मर का नाम भी डिसाइडेड है। अमूल के अंदर टोमेटो स्लाइस कौन देगा, ऑनियन स्लाइस कौन देगा, बर्गर बन कौन देगा, उसके 54 सप्लायर्स हैं। कुड यू इमेजिन? एक फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए मैकडोनल्ड्स 54 सप्लायर्स की हेल्प लेता है। एक बर्गर या कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके साथ 54 सप्लायर जुड़े हुए हैं। मैकडोनल्ड्स सिर्फ असेंबलिंग करता है, असेंबल द प्रोडक्ट। अब आप समझ जाओ वैल्यू चेन का क्या एडवांटेज है। मैकडोनल्ड्स को कोई टेंशन नहीं है, मैकडोनल्ड्स का सब सप्लाई टाइम पे आ जाता है। ऑल इंडिया 350 स्टोर्स पे फुल सप्लाई टाइम पे पहुंच जाता है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि सप्लाई किए हुए प्रोडक्ट को आपको असेंबल कैसे करना है। असेंबलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, रॉ मटेरियल अपने आप आ जाता है। दिस इज व्हाट इज वैल्यू चेन मैनेजमेंट। एक बर्गर, लो कॉस्ट बर्गर ब्रांड बनाने के लिए मैकडोनल्ड्स इंडिया के 54 सप्लायर्स के साथ बैक एंड इंटीग्रेशन करता है। वी शुड लर्न फ्रॉम दिस मॉडल। मैं आपको एक और होमवर्क दूंगी, आप माइकल पॉटर्स का वैल्यू चेन मॉडल को अंडरस्टैंड करिए। किसी भी बिजनेस के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर इस मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, पहले आप प्राइमरी एक्टिविटीज डिफाइन करिए अपनी। प्राइमरी एक्टिविटी के मतलब है इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक का क्या मतलब है, मेरे को क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए टोमेटो ग्रो करने के लिए, कैसे आएंगे, कब आएंगे, किसके हाथ आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या रहेगा, कौन सी डेट को आएंगे, और कौन सा सप्लायर मुझे 5 साल तक ये रॉ मटेरियल देगा। हम एक वैल्यू चेन डेवलप कर रहे हैं हमारे टोमेटो के लिए। तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक, मतलब सप्लायर फॉर प्रोडक्शन कौन कौन होंगे, कैसे होंगे। अब आप इधर देखिए, चार्ट के अंदर मैंने आपको बताया है अमूल, बैक्टर, कोको कोला, ये सब मैकडोनल्ड्स के सप्लायर है। मैकडोनल्ड्स का सबसे बड़ा सप्लायर है मैकेन। समझ में आ रहा है? मैकेन जो उसको सारे सेमी फिनिश पोटैटो प्रोडक्ट्स बनाकर दिखाए। ऑपरेशंस की बात करिए, प्रोडक्शन, चलो रॉ मटेरियल आ गया, प्रोडक्शन एक्टिविटी को डिफाइन करिए। प्रोडक्शन हो गया, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक का क्या मतलब है, मेरे फार्म से कंज्यूमर गेट तक कैसे जाएगा। बात आ गई समझ में? सप्लायर कैसे होगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, और फार्म गेट से कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, इसकी प्लानिंग करिए। मार्केटिंग एंड सेल्स की बात करिए, प्राइसिंग क्या होगी, ब्रांडिंग क्या होगी, पैकेजिंग क्या होगा, सब कुछ की बात करिए। सर्विस, फीडबैक लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि कस्टमर को बेचकर निकल गए, फीडबैक लीजिए, कनेक्ट करिए, न्यू नीड के बारे में बात करिए। कस्टमर सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सपोर्टिंग एक्टिविटीज बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेंड, स्किल्ड लेबर की जरूरत है हमको, ऐसे वैसे लेबर की नहीं, स्किल्ड रिक्रूटमेंट करिए आप। टेक्नोलॉजी क्या क्या लगेगी, मार्केटिंग के लिए क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, प्रोडक्शन के लिए क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, स्टोरेज के लिए क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, और प्रोक्योरमेंट के लिए कैसे हम प्लान करेंगे। सबसे बड़ी चीज हम एग्रीकल्चर के अंदर जो नहीं बात करते हैं वो है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब है परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल frequently from same supplier।
हम बात ही नहीं करते, सीजन आएगा फिर से रिटेलर ढूंढेंगे, सीजन आएगा नया रिटेलर ढूंढेंगे, नहीं चलेगा। हमें एक चेन के अंदर सारे स्टेक होल्डर्स परमानेंट चाहिए 3 से 5 साल के लिए, तब आप एक सप्लाई चेन वैल्यू चेन डेवलप कर पाओगे। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी एक स्ट्रैटेजी है जिसकी हम बात कर सकते हैं। आप क्या करो, आपने वैल्यू चेन बना ली, फिर आप एक प्लानिंग करो कि या तो मैं लो कॉस्ट प्रोडक्शन पे फोकस करूंगा या मैं एक ऐसा प्रोडक्ट सेल करूंगा जो बाकी सारे फार्मर से अलग है। समझ में आ रहा है आपको? या तो आप कॉस्ट फोकस करिए कि मैं ऐसे प्राइस पे टोमेटो दूंगा, हाई क्वालिटी पैकेज ब्रांडेड लेबल्ड, जो कोई नहीं दे पा, कॉस्ट लो कॉस्ट। या फिर आप डिफरेंशिएशन पे फोकस करिए, मेरे टोमेटो में वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एग्रो प्रोसेसिंग फर्म को चाहिए। दो चीजें में आप, कई कंपनीज दोनों में काम करती हैं। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास एग्जांपल दिए हैं कि कौन सी कंपनी कॉस्ट एडवांटेज पे फोकस करती है वैल्यू चेन में और कौन सी कंपनी डिफरेंशिएशन एडवांटेज पे फोकस करती है। सो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हम देख सकते हैं। और मैं आपको बोलूंगी कि आज के टाइम में फार्मर अकेले नहीं कर पाएगा, एफपीओ की जरूरत है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जिन चीजों की मैंने बात करी है, एक मॉडल डेवलपमेंट की बात करी है, वो सह्याद्री कर पा रही है क्योंकि उसके पास 25,000 फार्मर्स का ग्रुप है, बट एक इंडिविजुअल फार्मर नासिक के अंदर नहीं कर पाएगा। तो जो मैंने आपको वैल्यू चेन डेवलपमेंट की बात करी है, उसके अंदर हमें प्रमोट करना है कलेक्टिव ग्रुप ऑफ फार्मर्स ऑफ सेम लोकेशन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट फोकस, जो गवर्नमेंट चाहती है। समझ में आ रहा है आपको? एफपीओस पे फोकस करिए, 100 फार्मर भी जुड़ेंगे तो वैल्यू चेन बना पाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इंडिविजुअली फार्मर ये सब नहीं कर पाएंगे, कलेक्टिव फार्मर्स कर पाएंगे। दैट इज व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन। क्योंकि हमारा फार्म का लैंड होल्डिंग कम हो गया है, फार्मर का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल कम है क्योंकि उसके पास प्रॉफिट ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, क्वालिटी इनपुट्स अवेलेबल नहीं है, इनपुट के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, और एक बहुत बड़ा चैलेंज है वेदर एंड क्लाइमेट जो अनकंट्रोलेबल है। अकेले नहीं होगा, कलेक्टिव से ही होगा। प्रमोट कलेक्टिविज्म इन योर लोकेलिटी फॉर वैल्यू चेन डेवलपमेंट। सह्याद्री फार्म्स हमारे पास बिगेस्ट एग्जाम्पल है जिसका 1500 करोड़ एनुअल टर्नओवर रहता है, जहां पे 25,000 फार्मर्स जुड़े हुए हैं थ्रू वन ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर्स ही सब कुछ है। और ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये मैंने विजिट किया है और ये इंटरनेशनल फील कराता है। आप अगर इस एजेंसी में या एफपीओ के अंदर घुसोगे तो आपको लगेगा कि मैं यूएस के किसी एग्रो फर्म में आया हूं। मैं आप सबको बोलूंगी, आप नासिक में सह्याद्री फार्म विजिट करके आइए और वर्ल्ड क्लास फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को फील करके आइए कि व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई चेन एंड वैल्यू चेन, जो ये लोग डेवलप कर चुके हैं। मैंने आपको पिछले में बताया था, दे आर इनटू विमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। सफल इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट मॉडल। आप पढ़िए मदर डेयरी का सफल मॉडल, 350 आउटलेट्स हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, हाई क्वालिटी प्रोक्योरमेंट करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल का फ्रॉम इंडिया। आप कोई भी एज अ फार्मर सफल की वेबसाइट पे जाकर खुद को फार्मर की तरह रजिस्टर करिए कि आप आओ और मेरे यहाँ से वेजिटेबल फ्रूट लेके आओ। हमारे गुजरात के अंदर बहुत सारे फार्मर्स आनंद के अंदर है जिनको आज तक भी सिलेक्शन नहीं मिला है। सिर्फ एक फार्मर है जो बनाना ग्रो कर रहा है ऑर्गेनिकली, उसी को सेलेक्ट किया है सफल ने। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई फॉर सफल। डायरेक्ट मार्क करिए, रायतू बाजार, अपनी मंडी, प्लक एंड पिक फार्म, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कॉमन है। इंटरनेशनल मार्केट्स में स्ट्रॉबेरी आप जाइए फार्म से पिक करिए, एप्पल जाइए पिक करिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। नासिक में आप वाइन यार्ड्स विजिट करिए, 300 से 400 रुपए फीस होगी आपकी अंदर जाने की, और आप इंजॉय करिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट फार्मर टू कंज्यूमर हमें बात करनी है। ट्रेसेबिलिटी लेके आइए, इंटरनेशनल मार्केट में आपका प्रोडक्ट स्कैन करके सारी डिटेल आ जानी चाहिए। हाउ ट्रांसपेरेंट यू आर टू मैक्सिमम रिटर्न्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। ट्रेसेबिलिटी कॉन्सेप्ट को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। सब्सक्रिप्शन मॉडल,
सब्सक्राइब कराइए। कंट्री डिलाइट, IIM अहमदाबाद, 5 IIM अहमदाबाद स्टूडेंट्स ने मिल्क में स्टार्ट किया है सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल से क्या होगा, आपको पता है मुझे कितना मिल्क प्रोक्योर करना है, क्योंकि मेरे पास 350 कंज्यूमर है, तो आपको एक्सेस प्रोक्योरमेंट की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब है उतनों को ही अवेलेबल कराना है। आप फ्रूट बास्केट डेवलप करिए सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बालाजी, डाबर, हिमालय, पेप्सिको, बालाजी फ्रॉम गुजरात, बालाजी चिप्स, ये अपने आप में एक एक हैं, I cannot discuss more in it, but contract farming is vertical integrated model, very good example of value chain and supply chain development, where backward integration can be your USP. आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके अपने सप्लायर इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम द नंबर 1 कंपनी इन द मार्केट। हाँ, मैं अपना एक कोर्स के बारे में बताऊंगी। हमने 6 months का मैं डायरेक्टर हूँ इस कोर्स की। हमने पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स इन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्टार्ट किया है। हम सेकेंड बैच 20 जून को खत्म कर देंगे सक्सेसफुली, जहां पे हम हाई लेवल एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। 6 months के लिए ऑनलाइन कोर्स है, जहां पे आप नेक्स्ट टाइम रजिस्टर कर सकते हो एंड यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज, एडवांटेजेस एंड कनेक्शन टू वेरी गुड एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्री। एंड आपको पता चलेगा FPO कैसा बनाना है, क्यों बनाना है और हमें किस लेवल पर FPO फॉर्मेशन की जरूरत है। तो दिस इज माय ब्रोशर, आप NAU की वेबसाइट पे भी आपको पता लग जाएगा। हम नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो आप ये 6 months का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर मोर नॉलेज रिगार्डिंग FPO। So with this, I will finish my session on value chain management, regarding what is the importance of supply chain and value chain management in agriculture sector. Hope it was you were able to grasp what I wanted to convey to you all. Thank you so much, ma'am, for enlightening us for such an informative session. So participant may raise their queries. However, we are also having several queries of our participants. So one person is asking रजिस्टर कैसे करें मैम इसमें। तो मैम ने जैसा अभी बताया, अभी ब्रोशर रिलीज होगा तो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। मैम ने जस्ट अभी इसका आंसर किया है। तो मैं अदर क्वेश्चंस के मैम 1 by 1 मैं ले लेती हूँ। तो अंकित कुमार सिंह के कुछ मैम ब्रोशर वाली स्लाइड आगे कर दीजिए आप। मैम yes sir, I'll do it, but this is the last year brochure. अभी हम 1 महीने बाद फिर से एडवर्टाइज करेंगे इस कोर्स को। हाँ जी मैम, मैंने ये अभी इन्फॉर्म किया है कि इसका 35 सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, ओनली 35 कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम एंड एवरी ईयर अभी हमारे पास 7 स्टेट्स के पार्टिसिपेंट्स हैं इसके अंदर। ऑल आर डूइंग PhD एंड मास्टर्स। तो आप लोग वेबसाइट देख सकते हैं और बाकी मैम से तो कांटेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि मैम ही देखते हैं। या मैं ब्रोशर ग्रुप में शेयर कर दूंगी नेक्स्ट बैच Thank you. का। So what are the biggest challenges currently faced by FPO in achieving long-term sustainability in India? And how can small and marginal farmer be motivated to actively participate in FPO? So there are few queries I'll discuss later. देखो अभी क्या है फार्मर प्रोड्यूसर, अभी देखो मैं एक चीज बोलूंगी कि गवर्नमेंट नंबर्स पे फोकस हो रहा है। हमारा मेन टारगेट है कि हमने इतने 35,000 बना लिए हैं FPOs, बट अभी उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे इश्यूज हैं, हायरार्की लेवल इश्यूज हैं एंड डिसीजन मेकिंग इश्यूज हैं regarding connection of every stakeholder in decision making बहुत बड़ा issue है। But in Gujarat, I will say that I am connected to many FPOs which are on Amazon platform also and which are doing wonderfully very well. And they are trying to understand कि कैसे फॉर्मेशन करना है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, कैसे हमें collectively रन करना है, and we have to build a brand in the market. When I talk about an FPO dealing into honey, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक FPO है जो हनी मार्केटिंग कर रहा है, बट उसको डाबर के साथ भी कॉम्पीट करना है एज एन नेशनल प्लेयर। तो उस तरीके से देयर आर सो मेनी गैप्स वेयर दीज FPOs आर अनेबल टू शो देयर प्रोडक्ट in competition to already existing national brands.
पतंजलि भी हनी के अंदर है, डाबर भी हनी के अंदर है, बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हनी के अंदर है। देन एफपीओस को ये बताना है कि हाउ माय हनी इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड्स इन द मार्केट। सो उनको मोर orientation देना है related to the other part, which is the distribution, marketing and promotion of the product, and in align to their management of organizational structure. There are two more queries. Based on your experience, what is one major mistake most FPO make? And also, what advice would you give to students who want to work in rural entrepreneurship? The FPUs, the one thing is don't ever concentrate on numbers of members. अभी क्या हो रहा है, नंबर मेंबर इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि आपको स्कीम तभी मिलेगी जब 350 लोग होंगे, या फिर हम इसीलिए अलाइन हो रहे हैं क्योंकि हमें गवर्नमेंट के फंड का बेनिफिट लेना है। जब तक हम सेम ऑब्जेक्टिव का, या हम एफपीओ इस मोटिव से ना, एफपीओ का फॉर्मेशन का मोटिव होना चाहिए प्रॉब्लम। अमूल मिल्क कॉपरेटिव कब आया था? जब इंडिया में मिल्क का लॉसेस 60 to 70% हो गया था, और तब एक नीड जनरेट हुई थी कि हमें कॉपरेटिव मॉडल बनाना पड़ेगा, और आज वही कॉपरेटिव मॉडल का हमारा 70% वेस्टेज का 3% हो गया है मिल्क के अंदर। हमारा ऑब्जेक्टिव सोशल बेनिफिट होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेशन, मार्केटिंग ओरिएंटेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट फंड हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, ये बना लेते हैं, नाम क्रिएट कर लेते हैं एफपीओ का। नहीं, आप लिटरली सह्याद्री फार्म का मॉडल स्टडी करिए। उनका ऑब्जेक्टिव था कि टोमेटो फार्मर्स को कैसे लॉसेस से बचाया जाए, ग्रेप्स फार्मर को कैसे लॉसेस से बचाया जाए। एंड मैं आपको अगर सह्याद्री की स्टोरी बताऊं तो वो इतनी अमेजिंग है कि वो आप जब वहां विजिट करेंगे आपको पता चलेगा कि दे आर सो मच कनेक्टेड टू फ्यूचर। सह्याद्री फार्म अब कलर्ड ग्रेप्स ला रहा है नासिक के अंदर, वैरायटी डेवलप कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि फ्यूचर क्या है एक्सपोर्ट का वो स्टडी कर चुके हैं। दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे मेंबर्स का गोल और ऑब्जेक्टिव कॉमन होना चाहिए, सॉल्विंग सम प्रॉब्लम विच फार्मर्स आर फेसिंग इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। So thank you so much, ma'am, for such an informative session. Thank you. So thank you very much, now, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now I take Thank this you. opportunity to express my heartfelt gratitude and propose a vote of thanks. On behalf of organizing committee, institutions, I extend my sincere thanks to the speaker, Dr. Swati Sharma, Professor of Agribusiness Management at ASPP PEE Agribusiness Management Institute, Navsari Agriculture University, Gujarat, and our organizing university, Rani Lakshmibai Central Agriculture University, Jhansi, University of Agriculture Sciences, Raichur, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, संत गिरिरा गुरु विश्वविद्यालय, एंड द इंस्टीट्यूशंस AFTEFS Society and Vital Biotech Education Group, our faculty members and experts, Dr. Jitendra Mehta, President AFTEFS Society, our technical support team, and all participants who have joined us from different parts of the country. Your presence has made this technical session truly meaningful and memorable. With this, we conclude day 15. All participants are requested to please join tomorrow at 6 p.m. Wishing everyone a productive, enriching, and successful 21 Krishi Manthan Summer School Training Program. Stay connected and keep learning. Jai Hind to all. Thank you all, and all the best to every participants for their Jai futures. Hind, ma'am, and thank you so much for such an informative session. Your session was very informative and truly wonderful, truly wonderful. So I think it was Thank you. very beneficial to our student, Yes. and the student raised a demand to organize again. That's right. So we will be inviting you soon for our upcoming sessions. So thank you so much, Sure, ma'am. sure. Thank you all.